Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare प्रिय भक्तों जो भी डिवोटीज ज्वाइन करना चाहते हैं काइंडली ज्वाइन Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jai Hare Radha Krishna Chandra Radha Krishna Radha Chandra Krishna Radhe Chandra Jai Radha Krishna Chandra Jai Radha Radha Krishna Chandra Radhe Radha Jai Krishna Balaram Ram Krishna Krishna Balaram Balaram Krishna Krishna Balaram Balaram Jai Krishna Balaram Balaram Jai Krishna Krishna Balaram Balaram Krishna Krishna Balaram Balaram Krishna Krishna Balaram Balaram Jai Jai Krishna Krishna Balaram Balaram Jai Nitai Gaurahari Nitai Hare Gaurahari Nitai Gaurahari Jai Gaura Jai Gaura Nitai Gauranitai, 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 Jai Gaura Gauranitai. Jaya Prabhupada, Pada, Prabhupada, Prabhupada, Pada, Jaya Jai Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jai Guru Gurudeva, Deva, Guru Deva, Gurudeva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Gurudeva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय। Jai, Jai, बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। Jai, Jai, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। Jai, Jai, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। Jai. Jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayanam Narayanam Namaskritya Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं Naram Naram Chaiva Narottamam Narottamam देवं सरस्वतीं व्यासं Devim Devim Saraswati Saraswati Vyasam Vyasa ततो जयमुदीरयेत्। Tato Tato Jayamudire Jayamudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashtaprayesu Nashtaprayesu Abhadreshu Bhadresu नित्यं भागवत सेवया Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevaya भगवति उत्तमश्लोके Bhagavate Bhagavati Uttamashaloke Uttamaśloke भक्तिर्भवति नैष्टिकी Bhakti Bhavati Bhakti Naistiki Naistiki ॐ अज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna,
आज के हरे कृष्ण श्रीमद् प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का ये अध्ययन आरंभ करते हैं। श्लोक विजिबल है स्क्रीन पे? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय, जिनका टाइटल है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, और श्लोक नंबर 14। मैं श्लोक पढ़ता हूं। अशेष संक्लेश समं विदाते गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द पराग सेवरतिरात्मलब्धा। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। अशेष संक्लेश समं विदाते अशेष अशेष संक्लेश गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे गुणानुवाद मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द किं किं वा वा पुनः शरणारविन्द पराग सेवरतिरात्मलब्धा पराग आत्मलब्धा अशेष संक्लेश समं विदाते अक्षेष गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द किं वा पराग सेवरतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश समं विदाते अशेष गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे अनुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द किं वा पराग सेवरतिरात्मलब्धा पराग धन्यवाद। जो भी भक्त इस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कृपया पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अशेष संक्लेश समं विदते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण संक्लेशमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। अशेष संक्लेश समं विधत्ते
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। माता जी पढ़िए। जी जी आप पढ़िए माता नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़िए। जी। जी धन्यवाद माता जी। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणनुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनः तत्चरणारविन्द पराग सेवारति आत्मलब्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशेष संकलेश शमं विदते गुण अनुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनः तत् चरणं अरविंद पराग सेवारति आत्मलब्धा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द परागो सेवारनितारतमलब्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अशेष संकलेश सममं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारति आत्मलब्ध। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अशेष संक्लेश समं विधते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ता हूं। अशेष असीम, संक्लेश कष्टमय स्थिति, शमम शमन, विद्यते संपन्न कर सकता है, गुण अनुवाद दिव्य नाम रूप गुण लीला पार्षद तथा साज सामग्री इत्यादि का, श्रवणम सुनना तथा कीर्तन करना, मुरारे मुरारी श्री कृष्ण का, किम वा और अधिक क्या कहा जाए, पुनः फिर तत तथ उसके चरण चरणारविंद चरण कमल पराग सेवा सुगंधित धूल की सेवा के लिए, रति आकर्षण आत्मलब्धा जिन्होंने ऐसी आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो।
आप कृपया मेरे साथ ये अनुवाद दोहराइए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम भगवान श्री भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री के कृष्ण दिव्य के नाम, दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन रूप रूप इत्यादि रूप इत्यादि के इत्यादि के कीर्तन कीर्तन तथा श्रवण मात्र से तथा तथा श्रवण श्रवण तथा मात्र मात्र श्रवण से मात्र से मनुष्य की मनुष्य मनुष्य की की मनुष्य की असीम कष्टप्रद असीम 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 कष्ट कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है, अवस्थाएं अवस्थाएं शामिल शमित हो अवस्थाएं सकती है। से अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए। अतएव उनके अतएव विषय उनके उनके विषय विषय में में क्या क्या कहा कहा जाए। जाए। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की जिन्होंने 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 भगवान के भगवान चरण के कमलों चरण की कमलों धूल की की धूल की उनकी सुगंध की सेवा करने के लिए सुगंध सुगंध की की सुगंध सेवा गंध की सेवा करने के सेवा करने लिए के करने लिए के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। आकर्षण 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 प्राप्त प्राप्त कर प्राप्त लिया कर कर हो। लिया लिया हो। हो। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रमाकांत पांडे प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूल के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा पेज को ओवर ऊपर करना पड़ेगा जी। हरे धन्यवाद होते हैं। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व अर्थात प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह से दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये अनुवाद और एक बार मैं पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। आज का
श्लोक, इस श्लोक भागवत का एक अनमोल रत्न है। यह वह स्थान है जहां महान ऋषि मैत्रेय विदुर जी के सभी प्रश्नों का अंतिम निर्णय देते हैं। हम सब के जीवन में कुछ न कुछ बोझ होता है, थकान, चिंता, जिम्मेदारियां और मन का हल्का दर्द। लेकिन आज का ये श्लोक एक अद्भुत वचन देता है। केवल भगवान के गुणों का श्रवण करने से असीमित दुख समाप्त हो जाता है, और ये दुख, ये असीमित दुख समाप्त हो जाने की जो ये श्लोक हमें बताता है, वो धीरे नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, और शर्तों के साथ भी नहीं, बल्कि अशेष संक्लेश समम, पूर्ण रूप से तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी से बात कर रहे हैं, और विदुर जी राजमहल की राजनीति, कलह और शोर को छोड़कर निकले हैं। थके हुए हैं, लेकिन हृदय में सच्चाई की खोज है। उन्हें पद नहीं चाहिए, उन्हें भगवान श्री कृष्ण चाहिए। और मैत्रेय ऋषि एक अद्भुत बात कहते हैं। मैत्रेय ऋषि पूछते हैं, विदुर, क्या तुम जानते हो, केवल भगवान के गुणों का श्रवण असीमित दुखों को नष्ट कर देता है। तो विदुर जी ये सुन रहा है। उन्होंने अपमान, अकेलापन, त्याग सब झेल कर आए हैं, और वे अचानक सुनते हैं, तुम्हारा दुख केवल कृष्ण कथा सुनने से समाप्त हो सकता है। ये भागवत का सीधा वचन है। और फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, यदि केवल श्रवण इतना शक्तिशाली है, तो उन भक्तों को क्या कहना जो भगवान के चरणों की धूल की सेवा में रत हो जाते हैं। तो यहां हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां चरण नहीं कहा, सेवा नहीं कहा, और दर्शन नहीं कहा, केवल धूल। तो चरणों की धूल भी मुक्ति देती है।
भगवान के चरणों की धूल भी मुक्ति देती है और धूल भी प्रेम देती है और धूल भी भगवान की उपस्थिति देती है। तो भागवत में अक्रूर जी का प्रसंग इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। अक्रूर जी जब वृंदावन की सीमा पर पहुंचे, वे कंस कंस के दूत बनकर वृंदावन जा रहे हैं, और जब वृंदावन की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने भूमि पर, वृंदावन के भूमि पर, पावन धरती पर भगवान कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह देखे। बस उनका हृदय पिघल गया। भागवत वर्णन करता है कि अक्रूर जी उन चरण चिन्हों को देखते ही रोने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे और फिर उस धूल में लौटने लगे। वे कहते हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये वही धूल है जो गोपियों के सिर पर रहती है, और ये वही धूल है जो वृंदावन को पवित्र बनाती है, और यही वही धूल है जो भगवान के चरणों से निकली है। तो अक्रूर जी का शरीर रोमांचित हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बार बार उस धूल को अपने सिर पर लगाते रहे। और ये है चरणों की धूल का प्रभाव। भगवान के चरणों के धूल ने अक्रूर जी को आनंद दिया, प्रेम दिया और भगवान की उपस्थिति दी और उनके हृदय को शुद्ध कर दिया, सिर्फ भगवान के चरण से निकले हुए धूल। और यही कारण है कि भागवत बार बार कहता है, भगवान के चरणों की धूल भी मुक्तिदायी है। भगवान के चरण की धूल जो है प्रेम देती है, और धूल भी भगवान की उपस्थिति देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी परपट में दो मुख्य रत्न के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और ये रत्न है मैत्रेय ऋषि का अंतिम निर्णय। मैत्रेय ऋषि इस श्लोक में विदुर जी को अंतिम उत्तर देते हैं, उनके प्रश्नों का अंतिम उत्तर। और अंतिम उत्तर है कि भक्ति ही सभी दुखों को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है। ज्ञान, योग, तपस्या, त्याग, ये सब मार्ग है, लेकिन भक्ति के बिना
फल नहीं देते हैं। और इसीलिए देखिए, क्योंकि ज्ञान, योग और तपस्या और त्याग, इनमें सब अगर हमें फल मिलना है तो बहुत सारा टाइम लेता है। लेकिन भक्ति और ये मार्ग जो है, ये सब मार्ग जो है, भक्ति के बिना फल नहीं देते। इसीलिए अधूरी जप भी काम करती है, ध्यान भटक जाए तो भी काम करता है, और छोटी सी सेवा भी काम करती है। क्योंकि भक्ति जो है तुरंत प्रभाव देती है। अन्य मार्ग जो है, जो ज्ञान, योग या तपस्या या त्याग, ये सब फलदायी है लेकिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो तुरंत प्रभाव देती है। और दूसरा रत्न जो परपट में प्रभुपाद जी लिखे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, राग भक्ति से भक्त भगवान को भी नियंत्रित कर सकता है। तो ये कैसे समझे? राग भक्ति से भक्त भगवान को भी नियंत्रित कर सकता है, तो ये कैसे समझे? तो चलिए हम वृंदावन चलते हैं, जहां पे नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण, जो समय के स्वामी हैं, सृष्टि के रचयिता है और असंख्य ब्रह्मांडों के नियंत्रक है, डरे हुए भाग रहे हैं, पसीना बह रहा है, आंसू आ रहा है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और भागते हैं। और यशोदा मैया रस्सी लेकर पीछे दौड़ रही है। और अंत में भगवान कृष्ण स्वयं को बंधवा देता है, रस्सी से नहीं, बल से नहीं, गांठ से नहीं, प्रेम से। तो यही राग भक्ति है, यही भगवान को वश में करना है। तो भक्त ही अपने प्रेम से भगवान को वश में कर सकता है। और राग भक्ति का शिखर गोपियों में है, जो रास स्थली में भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका सकता। ब्रह्मा जी की आयु तक भी नहीं। यह वही भगवान है जो सृष्टि को चलाते हैं, जो सबके स्वामी हैं, और वे कहते हैं मैं तुम्हारे प्रेम से पराजित हूं। और ये राग भक्ति है, और ये भगवान को वश में करना है, रस्सी से नहीं, बल से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम से। तो राग भक्ति जो है ये अचानक नहीं आती।
भागवत और रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्त का हृदय धीरे धीरे बदलता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं पहले आती है श्रद्धा, जो भगवान में विश्वास करता है। फिर साधु संग, भक्तों की संगति, और फिर भजन क्रिया माने नियमित साधना, और फिर अनर्थ निवृत्ति, मन के दोष को दूर होता है, और फिर निष्ठा, साधना जो है स्थिर हो जाती है, और फिर रुचि, भगवान में, भगवान की सेवा में स्वाद आने लगता है, और फिर आगे बढ़कर आसक्ति, जो मन स्वतः भगवान की ओर खींचता है, और फिर आती है राग भक्ति, जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि भगवान की भक्ति के प्रेम से बंध जाते हैं। तो आज के श्लोक का सार, श्रवण से भक्ति आती है, भक्ति से राग आता है, और राग से भगवान भी भक्त के प्रेम में वश हो जाते हैं। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि साधना भक्ति धीरे धीरे राग भक्ति में बदलती है, और यही वाक्य श्रील प्रभुपाद जी भी अपने परपट में लिखे हैं। और राग भक्ति वही प्रेम है जो हमें वृंदावन में दिखता है, यशोदा मैया, गोपिया और गोप और सब में। तो श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में यही सत्य 2 बार कहता है। श्रीमद् भागवतम के 4.31.19 में बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्त से कैसे प्रसन्न होता है बहुत ही स्पष्ट लिखा है। तो श्लोक है, मैं पढ़ता हूं इसको। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्व इंद्रियो पशान्तया च तुष्यति असु जनार्दन। माने सभी जीवों पर दया करने से, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने से, और इंद्रियों को विषय भोग से रोकने से मनुष्य बहुत शीघ्र ही भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर सकता है। तो ये रहा भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उसका रास। तो इससे हमें 3 बातें मिलता है। दया सर्वभूतेषु माने जब जीवों पर दया, संतुष्टया माने हर परिस्थिति में संतोष, और
इंद्रियों का संयम सेवा में लगाकर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवों पर सबसे बड़ी दया क्या है। बहुत ही क्लियरली उस श्लोक के परपट में उन्होंने लिखा है, भगवान कृष्ण कृष्ण चेतना का प्रसार। तो यही है सबसे बड़ी दया जो हम सभी जीवों पर सभी जीवों को दे सकते हैं, वो है कृष्ण चेतना का प्रसार। जोर से अगर हम हरिनाम करने से मनुष्य, पशु, वृक्ष, कीट सबको लाभ होता है। और जब हम जीवों पर दया करते हैं कृष्ण चेतना का प्रसार करने से, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, दुख समाप्त हो जाता है। तो इसका सब्सिक्वेंट वर्स जो है, श्लोक जो है 4.31.20, उसमें कहा जाता है जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही क्लियरली लिखा है। तो उस श्लोक कहता है 4.31.20 में कि श्लोक कहता है जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान कृष्ण उस हृदय में बैठ जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं, तो वे भक्त पर निर्भर हो जाता है। तो उस श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान अजय है पर भक्त के प्रेम से जीत जाते हैं। तो यही हम देखते हैं, हमने हमारे उदाहरण में जो हम देखे थे, जो भगवान के लीला थे, यशोदा मैया और गोपिया, शुद्ध भक्तों का प्रेम हमने देखा। माने राग भक्ति भगवान को भी बांध लेती है। आगे भगवत गीता में भी 9.14 में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। माने ये श्लोक जो है, आप जैसे वरिष्ठ भक्तों का जीवन का वर्णन है। सालों की सेवा, जप, श्रवण और स्मरण, तो यही हम भक्त जो है करते आ रहे हैं। और आगे भगवत गीता में 12.9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योगेन ततो। माने यदि मन स्थिर न भी रहे, अभ्यास करते रहो और तुम मुझे प्राप्त करोगे। और यही है आज के श्लोक का तत्व। साधना भक्ति जो है धीरे से राग भक्ति तक ले जाती है। और जब राग भक्ति का फ्रूट है सिद्धि, तो यही है आज के इस श्लोक और परपट में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी हमें बहुत ही क्लियरली स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति मार्ग, अभी मैत्रेय ऋषि ने
यही विदुर जी को भी उन्होंने यही बताया कि भक्ति मार्ग ही एक 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 ही भक्ति मार्ग ही एक पाथ है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के बिना फल नहीं देते हैं। तो भक्ति मार्ग डिवोशनल प्रोसेस जो है, डिवोशनल सर्विस जो है, वही एक ही मार्ग है जिससे हमें भगवान की, यही है मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी के सारे प्रश्नों का उत्तर जो उन्होंने दिया यही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे ये जो भक्ति है वो हमारे लिए हम काम कर रही है कि नहीं। हम जो चांटिंग करते हैं, हम ये जो डिवोशनल प्रोसेस जो सेवा करते हैं, इससे हमें शुद्धता, हमारे हृदय जो है शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमें सेल्फ असेसमेंट करते रहना है। अगर हम भगवान की नाम की जप कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रेम से और अफेक्शनेटली हम कर रहे हैं कि नहीं, या डिस्ट्रैक्टेड है। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड, अगर फोन या टीवी या ये सब देख के हम अगर जप जप करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो हम जो भी सर्विस करते हैं उसका हमें बहुत ही प्रेम से भगवान की नाम का जप जो है 16 राउंड अगर हम कर रहे हैं तो वो 16 राउंड हम श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। मन भटकते रहता है, लेकिन हमने अभी देखा कि भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योगेन, माने भगवान कहते हैं यदि मन स्थिर न भी रहे लेकिन अभ्यास करते रहो। तो ये जो हमारा जो चेष्टा है मन को अपने चांटिंग में जो लेके वापस लेके आना है और भगवान को प्रेम से अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान भी हमारा मदद करेंगे, गुरु हम हमारा मदद जरूर करेंगे। तो यही है। तो प्रतिदिन अगर हम भगवान कृष्ण का एक गुण सुने या याद करें तो ये धीरे धीरे हमारे मन के क्लेशों को पिघला देगा। और जहां भी हमारे मन में स्वतः भगवान कृष्ण के प्रति अगर आकर्षण उठे तो उसे पहचानना चाहिए, क्योंकि मन जो है इससे हमको क्या मिलता है, यही राग भक्ति के उभरने का संकेत है। क्योंकि अगर हमारा मन स्वतः भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, आकर्षित होता है, तो हमें उसे पहचानना चाहिए। किस सेवा, भगवान भगवान के लिए हम क्या जो भी सेवा करते हैं उसमें से अगर हमारा मन जो है आकर्षित होता है तो उस सेवा में से हमें पहचानना चाहिए कि यही है राग भक्ति का आरंभ। और प्रतिदिन अगर हम कोई भी छोटी सी सेवा भगवान के लिए करें, जो दूल सेवा के रूप में करें, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ही छोटी, बहुत ही सरल, बिना किसी दिखावे की। लेकिन जब हम वो सेवा करते हैं, अगर हम प्रेम और विनम्रता के साथ अगर हम वो सर्विस कर रहे हैं तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हमारे भक्ति में वो मदद करता है। तो हमारा जो
आकर्षण है भगवान के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, वो बढ़ना चाहिए। तो यही यही था मुझे जो बोलना था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, या कुछ कमेंट्स भी हो जो हमने आज चर्चा की थी। ये श्लोक तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, और बहुत ही क्लियरली हमें ये मैसेज श्रीमद् भागवतम द्वारा हमें मिलता है कि डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट। तो देखिए, हम लोगों का, हम सब भक्तों का सौभाग्य जो है, हमने करेक्ट जगह पे आए हैं। जो डिवोशनल सर्विस जो है, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हम आए हैं। तो हम बहुत ही वैसे बहुत ही फॉर्चुनेट है। तो यही रुकते हैं। आपका कमेंट्स या कुछ ये है तो जरूर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कोई वक्त इसका समराइज करना चाहते हैं तो प्लीज आप समराइज कीजिए जो हमने आज चर्चा की, जो हमने परपट पढ़ा। तो इसका समराइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा। कोई इस वक्त करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो हरि नाम की महिमा, ये भी श्लोक जो है मैंने श्रीमद् भागवतम के 6.3.24 से लिया था। और इस श्लोक में हरिनाम का क्लोजिंग, हरिनाम का महिमा जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। मैं श्लोक पढ़ता हूं। एतवतालाम अगनिर्नय पुंसम संकीर्तनम भागवतो गुणकर्मम कर्मणाम। तो भागवत कहती हैं कि भगवान के नाम, गुण और लीला का संकीर्तन पापों को नष्ट करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। तो देखिए, ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम 6.3.24 भी इसी हमारा आज के इस श्लोक जो था 3.7.14 उसको भी सपोर्ट करता है। और भागवत कहती है कि भगवान के नाम, गुण और लीला का संकीर्तन पापों को नष्ट करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। तो हरिनाम केवल साधना नहीं, ये भगवान का सीधा स्पर्श है। और यह वह शक्ति है जो अतीत को काट देती है, वर्तमान को शुद्ध कर देती है और भविष्य को सुरक्षित कर देती है। तो हरिनाम पर्याप्त है, हरिनाम शक्तिशाली है, हरिनाम मुक्तदायक है, और हरिनाम भगवान का करुणा स्वरूप है। तो हम सब प्रेम से अपना हाथ ऊपर करके हरिनाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि कृष्णा। हरि बोल। कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम।